गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सेकंड चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। तो सभी बच्चे बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन इज सूडोपोडिया हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड इन विच ऑर्गेनिज्म? अमीबा, पैरामीशियम, अर्थवर्म और स्नेक। तो इस आंसर इज अमीबा। राइट, टिक मार्क ऑन अमीबा। Cockroaches is herbivorous, omnivorous, carnivorous और symbionts। तो omnivorous क्या है आपके? सॉरी, cockroaches क्या है आपके? omnivorous animals हैं। Tick mark on omnivorous. Okay, moving to the next page, page number 26. देखिए यहाँ पे digestion of food inside vacuole occurs in amoeba। फूड वैक्यूल के अंदर ही आपका डाइजेशन होता है फूड का, अमीबा के अंदर। फोर्थ वन देखिए, दिस इज नॉट अ ब्लड सकिंग एनिमल। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो ब्लड सक नहीं करता? तो हाउस फ्लाई जो होती है आपके घर में वो नहीं करती है। फिफ्थ वन, इन ह्यूमंस दिस टाइप ऑफ टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग। ऐसे कौन से टीथ हैं जो टीयरिंग के लिए यूज होते हैं इन ह्यूमंस? तो कैनायंस आर यूज्ड फॉर टीयरिंग, कैनायंस। नाउ सिक्स्थ वन, breakdown of complex insoluble organic compounds in simple organic molecules is called digestion. Tick mark on digestion. Seventh one देखिए, the largest gland in the human body is liver. Tick mark on liver. This organ begins with mouth and end with anus. So this is alimentary canal. Done seventh class? MCQ question? Okay. Moving towards fill in the blanks. देखिए फर्स्ट क्या है दिया है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू, राइट, बकल कैविटी हेयर, बकल कैविटी। नाउ सेकेंड वन, सेलुलोज इज नॉट डैश इन मेंस। तो सेलुलोज इज नॉट फाउंड इन मेन। सेलुलोज किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट प्रोड्यूसेस फैटी एसिड्स, FATTY, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल, and glycerol. Okay, fifth one, the liver secretes dash juice, bile juice, which is dash in nature, basic in nature. कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। ओके, नाउ फिफ्थ वन, grass eating animals like cows and buffaloes are called herbivorous, HERBIVOURS, herbivorous. Dash is the largest gland in human body. Liver is the largest gland. Done? Fill in the blank, seventh class. Next is your match the following. See, first one is protein. Protein is converted into amino acid. Write amino acid 1. Next is your lipids. Lipids कौन से होते हैं आपके? Fatty acids and glycerol are your lipids. Write 2 here. Okay. Next is your carbohydrates. Carbohydrates are simple sugar. Write 3 here. Salivary juice is secreted in buccal cavity. Fourth one. Last is your bile juice. Bile juice are fat. Done? Match the following. Okay. Write true and false. अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
सेकेंड वन देखिए, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय गॉल ब्लैडर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। केमिकल डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज फॉल्स। इट इज कंप्लीटेड इन स्टमक, जहां पे सारे क्या 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 मिलते हैं वहां पे स्टमक में, एंजाइम्स मिलते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। Small intestine does not produce any digestive juice, this statement is true। Saliva changes starch into sugar, this statement is also true। Now answer in one word। Hardest substance in human body, hardest substance in human body is enamel, जो आपके टीथ में प्रेजेंट होता है, enamel। सेकेंड देखिए, टीथ विथ फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस आर मोलर टीथ। मोलर टीथ, चार तरीके के टीथ होते हैं ना, इंसिजर्स, कैनाइन्स, premolar and molar, तो molars are flat grinding surface। A long tube with large number of finger like projections are called small intestine, is called small intestine, right? Fourth one, the part of stomach that temporarily stores partially chewed food of cows, this is rumen। rumen। Breaking down of food in simple soluble form in body is called digestion। So today we are going to start third chapter, cloth materials fiber to fabric। तो ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, नो दिस पॉइंट्स। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जितने भी हमारे फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो मैन मेड फाइबर्स लाइक रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक आर प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोकेमिकल्स। तो जितने भी आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जिससे आपके कपड़े बनते हैं या फिर जो भी आपके ठंड के कपड़े हैं, ये सब बनते हैं। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके फैब्रिक्स हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जितने भी आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द cocoon टू मेक सिल्क yarn इज कॉल्ड रीलिंग। अब हमारे पास एक ऐसा एनिमल होता है जिसे हम कहते हैं कुकून, जिससे हमें क्या मिलता है, थ्रेड मिलता है। ओके, अभी हम इस चैप्टर में पूरा डीपली पढ़ेंगे कि कहां से क्या आपको मिलता है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप हेयर हैविंग डिफरेंट टेक्सचर्स इज कॉल्ड शॉर्टिंग। और जो हमें वूल मिलता है वो आप सबको पता है शिप से मिलता है, हमें शिप की जो हेयर्स होते हैं उससे मिलता है। भेड़ देखा है ना, भेड़ पता है ना सबको क्या होता है, शीप को भेड़ बोलते हैं। ओके, ऑब्टेन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉटन और जूट। तो प्लांट से जो भी आपके फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉटन एंड जूट। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट, कैमल, रैबिट, याक एंड लेमा। तो जितने भी आपके वूल हैं वो कहाँ से मिलते हैं आपको, शीप से, गोट से, कैमल, रैबिट, इन सब से मिलते हैं। तो रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। तो जो हम शीप से जो हम उसके बाल जो होते हैं उसके ऊपर जो उसके स्किन पे हेयर्स होते हैं उनको जो हम निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप। तो वूल जो होता है वो भी हमें शिप से ही मिलता है। सिल्कवॉर्म आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्कवॉर्म जो होता है वो क्या होते हैं, कैटरपिलर होते हैं सिल्क मॉथ के। ठीक है, अभी ये सब हम सारा आपका जो है वो डीपली पढ़ेंगे। Salivary glands of caterpillar secrete a protein fiber that dries up to form silk. So moving towards chapter fiber and fabrics। तो क्या है आपका ये fiber and fabrics? Clothing is one of the basic necessity। Clothes are stitched from fibers. Fibers have a variety of textures, but each type of fabrics is prepared by weaving fibers। तो क्लोथ्स जो हैं, जो कपड़े हैं हमारे, वो ह्यूमन बींग्स की एक बेसिक नीड है।
ठीक है, सारे ह्यूमन बीइंग्स को कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्लोथ्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? पहले उन्हें स्टिच किया जाता है, कहाँ से? फैब्रिक से। अगर आपको खाली कपड़ा ला के दे दें तो आप उसे नहीं पहन सकते जब तक उसे अच्छी तरह से काट के, बना के, सिल के आपको ना दिया जाए, ठीक है। तो जो आपके फैब्रिक्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं। तो ईच टाइप ऑफ फैब्रिक जो होती है आपकी वो बनाई जाती है अलग अलग फाइबर्स की वीविंग करके। वीविंग समझते हो ना? वीविंग का मतलब होता है बुनना, बुनते जो है, ठीक है। फाइबर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटेरियल्स। फाइबर्स को कैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स का क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। They are the raw material from which fabric or textile for our clothes is prepared. तो फाइबर जो होते हैं वो एक रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? अब मान लीजिए कि आप अपने घर में खाना बनाते हैं, जो आपकी कटी हुई, जो आपकी कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं? वो रॉ मटेरियल है। जब आप उसे मसाले डाल के, तेल डाल के पका देते हो तो वो एक कंप्लीट आपकी सब्जी बन जाती है खाने लायक। उसी तरीके से जो आपके फाइबर्स हैं वो क्या है? आपके रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है बाद में जब इन्हें अच्छी तरह स्टिच कर वीव करके, शेप देके जब इसे बनाया जाता है तो ये कहलाते हैं क्लोथ्स, ठीक है। फिर देखिए डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो जितने भी आपके फैब्रिक होते हैं वो अलग अलग तरीके के फाइबर्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स हैं जो कैसे हमें क्लोथ्स, जो डिफरेंट सीजन्स में हमें अलग अलग टाइप के क्लोथ्स क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं। अब जैसे गर्मियां आ गई हैं अभी फिलहाल, तो गर्मियों में क्या होता है? कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कॉटन के क्लोथ्स इन समर्स। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब ठंडे रहते हैं। कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? ठंडे रहते हैं। और वुलन जो क्लोथ्स होते हैं उसे हमें एडवाइस किया जाता है कि हम उसे ठंड में पहने। क्यों? क्योंकि जो वुलन के क्लोथ्स है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम उन्हें गर्मियों में पहन के घूमेंगे तो फिर बहुत गर्मी लगेगी हमें। इसीलिए वुलन के क्लोथ्स ठंडियों में और कॉटन के क्लोथ्स गर्मियों में। ओके, नाउ कम्स योर द टॉपिक नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। तो कौन से ऐसे फाइबर्स हैं जो नेचुरल हैं और कौन से ऐसे फाइबर्स हैं जो मैन मेड हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसका नाम है नेचुरल फाइबर तो वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा? नेचर से ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से ऑब्टेन किया जाएगा। जैसे कि फाइबर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन लाइक कॉटन एंड जूट। तो कॉटन एंड जूट क्या है? आपके हाईली नेचुरल फाइबर्स हैं, क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे कि ये एक नेचुरल फाइबर है। देन इज योर फाइबर ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसे कि वूल एंड सिल्क। तो वूल एंड सिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ये भी? अब एनिमल जो है वो भी तो एक नेचुरल चीज है ना, ह्यूमन बीइंग है वो भी, सॉरी ह्यूमन बीइंग नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी। तो इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे? तो हमें जो ये बोला गया है, हमें क्या बोल रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स है ये भी एक, ओके। देन कम्स योर मैन मेड फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो मैन मेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, दीज आर रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड अर्कलेरिक, ठीक है, अर्केलिक। तो जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ओके। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके कपड़े जिसके बने होते हैं, ओके। नाउ कम्स योर वूल। Wool is prepared from fine underhairs of those animals which have furry skin. तो वूल जो है आपका वो कैसे बनाया जाता है? वो ऐसे बनाया जाता है कि जो भी आपके एनिमल्स होते हैं उनके जो बाल होते हैं, अब देखिए जो शीप है इसके जो ये बाल हैं इसके ऊपर, इससे आपके क्या बनते हैं? आपके वूल बनाया जाता है, ठीक है। वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो वूल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम शिप्स। तो वूल जो होते हैं आपके मेनली आपको शिप से मिलता है हमें। Also some breeds of goat like Angora, Cashmere and Mohair and the yak, camel, Angora rabbit, llama, alpaca provide wool. तो ये जितने भी हैं ये क्या है? आपकी ब्रीड्स हैं अलग अलग गोट्स की, ठीक है। तो ये सब हमें क्या देते हैं? ये सब हमें वूल प्रोवाइड करते हैं।
ओके।